Hello everyone, welcome to this tutorial. In this tutorial what we are going to do is basically questions from Gauss's law, and we know from our class that what is the statement of Gauss's law. Gauss's law states that if you want to find an electric field due to some charge distribution, what we need to do is we need to calculate the flux. Flux is E dot dA. This is the definition of flux, and this flux needs to be calculated through a closed Gaussian surface. Let me use this thickness. So the flux through electric flux through a closed Gaussian surface is equal to charge enclosed in that surface divided by some constant epsilon. So this is the statement of Gauss's law. Gauss's law we use to calculate electric field in the cases when we have symmetry in the problem, right? So we will discuss what we mean symmetry. तो गॉसेस लॉ हम यूज़ करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गिवन फॉर इंस्टेंस सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल this is a sphere, right? So we have a sphere, and this sphere has some charge distribution, and if we want to find for instance some electric field at point P, which is at a distance r from this sphere, then we can use Gauss's law to find this field. Actually Coulomb's law can also be used, but it's beneficial to use Gauss's law basically under these three symmetries. So for example, when the charge distribution is spherical, we can use spherical Gaussian surface. तो spherical अगर होगा तो spherical Gaussian surface यूज़ करेंगे. Otherwise if we have cylindrical charge distribution तो फिर हम cylindrical coordinates यूज़ करेंगे, and then the planar. So these are three symmetries. Spherical symmetry है, plane cylindrical and planar है. In these three cases, if we have such a charge distribution, then to calculate electric field it is much more easier to use Gauss's law than the Coulomb's law. Okay, in order to demonstrate the application of Gauss's law, let's consider a question. Find the field outside a uniformly charged sphere of radius r and total charge q. So this is the situation. We have a sphere. Okay, and that sphere has this radius r, and we want to find the field outside in this region, somewhere here or here, some point outside this sphere, right? And we have actually solved this question using Coulomb's law. और Coulomb's law में हमने ये किया था कि हमने at some point P above this sphere electric field find की थी, and you have already seen the calculations were not that easy, but in this case we have a spherical symmetry in the problem. तो हम ये करेंगे because इसके अंदर let's say positive charges है, right? तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज Gauss's law, which states that the electric flux through a closed surface, और ये surface हम closed लेंगे, is equal to charge enclosed in that surface which we consider divided by some constant. So first of all I need to consider this closed surface. तो इसमें हम because we have sphere spherical symmetry है तो हम closed surface
वी नीड टू फाइंड फील्ड आउटसाइड, तो आउटसाइड एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं एंड दैट क्लोज सरफेस इज इमेजिनरी, और मैं इसको सफियर की फॉर्म में ले रहा हूँ। ऑलराइट, और इस सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। ओके, अब in order to calculate this left side integral, this one, if you see, we need to calculate dot product between E and dA element, right? तो करना हमने ये है कि ये जो चार्ज सरफेस है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वी नो इट्स रेडियल आउटवर्ड। तो इस तरह की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी सफियर से। so these electric field lines are everywhere। तो अब अगर हम देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं और जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है ग्रीन वाली, तो इस पे जो सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर है, सरफेस का जो वेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे सरफेस का वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में सरफेस के वेक्टर में जो हमने ड्रॉ की और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे आर पैरेलल, विच मीन्स ई डॉट डी ए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ज़ीरो। तो ई डी ए और कोसाइन 0 डिग्री होगा, राइट। और हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं गॉसियन, और राइट साइड पे जो चार्ज इनक्लोज है, अब इसमें सारा टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। so q is charge divided by constant epsilon। okay, now because the field is uniform, I can take that out from the integral, cosine 0 1 हो जाएगा, and we will integrate to find the surface। so this is the surface area of a sphere, right side पे q over epsilon है। now what is the surface area of a sphere? so अगर आपको दिस इज सरफेस इंटीग्रल, इसमें दो इंटीग्रेशंस होंगी। हमने एरिया ऑफ अ स्फीयर फाइंड करना है, तो वी विल इंटीग्रेट ओवर थीटा एंड फाई। थीटा 0 से पाई तक होगा एंड फाई फ्रॉम 0 से 2 पाई, एंड वी नो जो इसका एलिमेंट होगा वो होगा सरफेस एलिमेंट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो इसमें अगर आप देखें आर तो कांस्टेंट है, आर विल गो आउट, और डी फाई से 2 पाई जनरेट होगा अगर मैं डी फाई की इंटीग्रेशन करूँगा, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई विल गिव मी 2, तो इट विल गिव मी 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर times E is equal to Q over epsilon। और थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख लूँ तो E is equal to 1 over 4 pi epsilon चार्ज Q over R square, right? Q over R square, और इसकी डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड है। so this is the electric field, and you see that this is the same electric field for a point charge. In this case, this charge Q is the total charge of the sphere, and it is, you can see, it is much more easier to find electric field using Gauss's law for a sphere, because problem में symmetry थी। अब एक और problem देखते हैं। read the problems, pause the video and try to solve by yourself। ओके, सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल है। चार्ज डेंसिटी है वो के एस है, और के एस हम कांस्टेंट है। इस सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सिचुएशन इज लाइक दैट, वी हैव एन सिलेंडर and
This is the central axis of the cylinder, z axis. ओके, अब हमें इस सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और गिवन हमें ये है कि जो रो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो k टाइम्स सम वेक्टर ऐसा, k टाइम्स s है, एंड s इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स हियर। जो टोटल डिस्टेंस है ये सेंट्रल लाइन से लेके यहाँ तक, दिस इज s। अब Gauss's law लिख लेते हैं। Gauss's law states that in order to find electric field we use E dot dA और हम क्लोज सरफेस लेंगे। Let's take that. Closed surface is equal to charge enclosed by that surface or divided by a constant epsilon. Okay, so this is a second type of symmetry। पहले spherical देखी है, अब cylindrical है। तो cylindrical में फिर हम जो Gaussian surface लेंगे वो भी cylindrical होगी। So let's take a Gaussian surface और इस Gaussian surface की length L है। So this is the length of the Gaussian surface, ये जो length है, और ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है वो s प्राइम, राइट, एंड वी कैन इंक्रीज इट। तो वंस अगेन जो गॉसियन सरफेस ली है, अगर आप देखो इसकी जो ये साइड्स हैं, एक ये फेस होगा और एक ये फेस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, एंड द रीज़न इज़ दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, if I draw electric field vectors, वो इस डायरेक्शन में होंगे, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो ये जो साइड्स मैंने हाईलाइट की हैं, ये वाली साइड, इस पे जो एरिया है इस साइड का और इस साइड का, उसकी डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है, तो ये जो साइड्स हैं इसका मतलब ये भी इसकी और इस, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। रीज़न उसकी सादा से है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी फील्ड ज़ीरो नहीं मुझे कहनी चाहिए थी, इट्स फ्लक्स इज ज़ीरो। इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का फ्लक्स ज़ीरो है। तो द ओनली फ्लक्स वी विल गेट इज फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये सिलेंडर के, राइट। तो वो कैसे कैलकुलेट करें? वंस अगेन फ्रॉम द फिगर वी कैन सी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कोसाइन ज़ीरो, इन दोनों के बीच में एंगल होगा, तो आई कैन टेक फील्ड आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बाई ले सकता हूँ। तो रिमेनिंग थिंग इज सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर जो मैंने कंसीडर किया है वो कैलकुलेट करना है, और राइट साइड पे चार्ज मुझे चाहिए, ये गॉसियन सरफेस ग्रीन वाली कितना चार्ज इनक्लोज करती है। तो एज वी नो दैट के रो जो है वो टी क्यू बाई, इसमें डी वी होगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, और क्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो चार्ज इनक्लोज रो डी वी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज कैलकुलेट करने के लिए आई नीड टू इंटीग्रेट रो ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक। तो इसको फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो तीन इंटीग्रल आएंगे। तो कौन कौन सी इंटीग्रेशन होंगी? लेंथ पे होगी, लेंथ 0 से L है, फिर एंगल पे इंटीग्रेशन होगी,
इस पे वो थीटा 0 से 2 पाई है, और फिर आर पे इंटीग्रेशन है, यानी जिसको एस बोला हुआ है, तो एस जो है वो 0 से एस तक है, और हमने इंटीग्रेट करना है रो को, विच इज़ गिवन बाय के एस प्राइम कह दूंगा मैं इसको, आई एम टेकिंग दिस अ डमी वेरिएबल, और डी वी जो वॉल्यूम एलिमेंट है फॉर द केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इट्स एस प्राइम। नॉर्मली हम इसको आर लिखते हैं इस क्वेश्चन में, एस है, सो डोंट वरी, डी एस प्राइम डी थीटा एंड डी सी। ठीक, तो z पे जब मैं z की देखें, z पे सिर्फ इंटीग्रेशन जो होगी वो ये होगी, लेट मी री राइट, 0 से l dz, एंड इफ आई सी थीटा, थीटा जो होगा वो 0 से 2 पाई है डी थीटा, और जो s की इंटीग्रेशन है वो 0 से s, एस प्राइम एस प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, और डी एस प्राइम, and I will take k out. So k times, यहाँ से l, यहाँ से 2 पाई l, और यहाँ से आएगा s क्यूब, ऑलराइट, s क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, राइट, सो दिस इज द आंसर। तो q इनक्लोज इसके इक्वल है, ठीक, k 2/3 पाई l s क्यूब 1 ओवर एप्सिलॉन, ये राइट साइड आ गई। So let me move this everything. Okay, and जो surface area not इस इंटीग्रेशन का आंसर, so this is the surface area for a cylinder, and once again surface area हम निकालेंगे, you can integrate theta 0 से 2 पाई and length 0 से l, and for surface area it will be s d theta, d theta होगा और dz होगा, तो it will be 2 पाई, ये l होगा और साथ इसके s मल्टीप्लाई होगा, so this is the answer of green integral is 2 pi l multiplied by s is equal to 2/3 k pi l s cube 1 over epsilon. Let's simplify things. सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 pi l से कैंसिल हो जाएगा, 1s goes with 1s, and remaining e will be k s square, k over 3 epsilon s square, और इसकी डायरेक्शन it is radially outward. So this is the answer of electric field when we have a non-uniform row. तो non-uniform अगर चार्ज डेंसिटी हो तो पहले रो को इंटीग्रेट कर लें, उससे चार्ज इनक्लोज विच इज़ इन चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, वो उसको पुट करें, और जो आपने गॉसियन सरफेस ली है उसका सरफेस एरिया निकाल लो. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ई. ओके, and this is the third example of planar symmetry. Pause the video, try to solve this question by yourself.
So the situation is like this. We have a infinite plane sheet. So हमारे पास infinite sheet है, राइट, और जिस पे चार्ज जो है वो सिग्मा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इन दिस केस जो गॉसियन सरफेस लूँगा वो मैं पिल बॉक्स लूँगा। पिल बॉक्स जैसे मैचेस की बॉक्स होती है, मैच बॉक्स, राइट। सो दिस मैच बॉक्स विल हैव 6 फेसेस। तो ये 1 2 इधर भी 3 4, एक ऊपर फेस होगा एक नीचे। सो वी विल कंसिडर अ पिल बॉक्स in this case, and let's write first the Gauss's law. Gauss's law states that the electric flux through the closed Gaussian surface, the closed surface is equal to charge enclosed by that surface divided by some constant epsilon. Now this surface has 6 faces, right? अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है शीट की वजह से, ये नॉर्मली अपवर्ड होगी हर जगह पे, राइट, एट एवरी पॉइंट ऑन द शीट इट इज़ अपवर्ड। और जो नीचे वाली साइड है इसकी शीट की, उस पे शीट नॉर्मली डाउनवर्ड होगी, राइट। तो अपवर्ड एक शीट है, उसकी अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और डाउनवर्ड होगी। तो जो ये फेसेस मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, दीज फेसेस, जो 4 फेसेस होंगे, ये और इसके ऑपोजिट फेस, ये और इसके ऑपोजिट फेस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। बिकॉज इस पे इसका जो एरिया का वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इधर को होगा, यहाँ पे इधर को, एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स, इसलिए फ्लक्स ज़ीरो होगा, राइट। जबकि ऊपर वाली सरफेस और डाउनवर्ड सरफेस दोनों में फ्लक्स होगा। तो वी विल कैलकुलेट 2 इंटीग्रल्स, बेसिकली इंटीग्रल 1 सरफेस अप प्लस इंटीग्रल 2 सरफेस डाउन। ओके, ई कांस्टेंट होगा, तो ई को मैं बाई ले लेता हूँ, राइट। सो डी ए and let's take it here, right side पे जो charge enclosed by this surface है, let's call that charge Q, divided by epsilon, और हमें पता है सिग्मा जो है surface charge density, it is given by सिग्मा जो होगी वो चार्ज ओवर एरिया होता है, चार्ज इस पे इनक्लोज क्यू है एंड डिवाइडेड बाय एरिया, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, राइट। तो यहाँ से भी एरिया आएगा, यहाँ से भी एरिया आएगा, तो इट विल बिकम 2a, और साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और राइट साइड पे सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन आ जाएगा, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन। तो अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एरिया से कैंसिल हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी normal to the sheet. So this is the electric field vector. Alright, so this is the answer for a single sheet, ये होगा। अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो, अगर शीट्स इस तरह से हो, 2 इन्फिनिट शीट्स हो like this,
if we have two infinite शीट्स तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी it is given by sigma over epsilon तो 2 ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ये फील्ड भी यही जनरेट करेगी और ये शीट भी यही फील्ड जनरेट करेगी, दोनों ऐड होंगे तो सिग्मा और एप्सिलॉन होगा. यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ. आगे क्वेश्चन देखते हैं. अब ये है कि हमने इनसाइड द स्फीयर फील्ड फाइंड करनी है. तो सिचुएशन ये है, वी हैव अ स्फीयर जिस पे कुछ चार्ज है. तो हमने इसके इनसाइड इसका लेट्स कॉल दैट रेडियस रो आर और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो इट इज़ गिवन बाय रो. अब अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ अगर हमने इनसाइड फील्ड फाइंड करनी है तो ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट थ्रू द एरिया एलिमेंट and enclosed by the Gaussian surface. So the flux through the Gaussian surface is equal to charge enclosed by that surface divided by epsilon. Okay. अब once again हमारा आर्गूमेंट वही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी at every point the angle of electric field and the area elements is 0 जो हम Gaussian surface लेते हैं, not the area element, this Gaussian surface. इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में एंगल 0 है तो ये ई आ जाएगी और अंदर हम सरफेस एरिया निकालेंगे Gaussian surface का और राइट साइड पे जो चार्ज इनक्लोज होगा that would be q is equal to integration rho dv. ठीक है जी. तो रो कांस्टेंट है और ये वॉल्यूम आएगा स्फीयर का. तो 4/3 पाई आर क्यूब रो. सो दिस इज द चार्ज. सो चार्ज विल बी रो 4/3 पाई आर क्यूब 1 ओवर एप्सिलॉन. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी ये सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब 1 ओवर एप्सिलॉन. देखते हैं कैंसिल करके. 4 पाई से आर स्क्वायर आर एक आर रह जाएगा and the electric field will be rho r over epsilon. rho r over epsilon और इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी. So this is rho r over epsilon is the electric field for a solid sphere. Okay. The last question for this tutorial is following. Pause the video and try to solve by yourself. Okay, situation ये है हमारे पास पहले एक स्फीयर था लास्ट क्वेश्चन में. now we have two spheres each of radius r. दोनों का रेडियस r है और एक पे लेट्स सपोज इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो r प्लस है तो इस पे आर माइनस है राइट. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे नेगेटिव है. द क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड एंड दे आर डिस्टेंस डी अपार्ट. कॉल द वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव सेंटर टू द नेगेटिव सेंटर. दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस जो अब इनके जो शो दैट द फील्ड इन द रीजन ऑफ ओवरलैप इज कांस्टेंट. अब करना हमने ये है कि लेट्स से दिस इज वन चार्ज प्लस
दिस इज द चार्ज माइनस. तो इसके बीच में जो वेक्टर है, लेट्स कॉल दैट वेक्टर डी. Alright, a plus, we need to find, for instance, electric field at this point, maybe here, somewhere here, arbitrary point. लेकिन ये इन बिटवीन है दोनों स्फीयर्स के, राइट. तो इस केस में हम करेंगे जो प्लस चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है, वेक्टर है, let me draw that and let's call that vector r plus. और माइनस वाली साइड से जो यहाँ तक वेक्टर है, लेट्स कॉल दैट वेक्टर r माइनस. सो d, ये d वेक्टर है अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन रूल. ये d वेक्टर प्लस r माइनस वेक्टर इज इक्वल टू r प्लस वेक्टर. And d vector is equal to r plus vector minus r minus vector. So this is important relation to solve this question. तो d को मैंने r plus और r minus की फॉर्म में निकाल लिया. रिमेंबर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो ये r प्लस है and this vector is r minus. So this is the situation. Okay, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जो लेट्स से फॉर पॉजिटिव सफियर. तो उस केस में अभी हमने ये निकाली है फील्ड, राइट, रो आर ओवर एप्सिलॉन. सो इट इज इक्वल टू रो, and for positive case let's write this row like this, row plus r plus vector divided by epsilon. So this is the electric field due to positively charged sphere. और नेगेटिव के लिए क्या होगी, E minus, it will be equal to minus रो. अब चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी और जो वेक्टर है वो r माइनस होगा एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ओके, और जो टोटल फील्ड होगी इन दोनों की एडिशन होगी and the total electric field is according to the superposition principle. हमें दोनों को ऐड करना है, तो I will take rho over epsilon constant और ऐड करते हुए r plus minus r minus vector ये करूँगा. तो r प्लस माइनस r माइनस वैक्टर d के इक्वल है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू d vector. And this is the answer, and this field is uniform, constant, because epsilon is constant, rho is constant, and d distance is constant. So we needed to show that the field in the region is constant, so we have proved that. With this we will end the tutorial.